Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficial and merciful. First of all, I want to say Assalamu alaikum to everyone. Hope that all of you will be fine. All of you are going very well in your life. So, dear friends, my name is Ali Shehzad. I am a student of MSc Chemistry, and I have completed 4-year English learning course, economic course, all the computer office automation related, and the graphic and designing courses, and I have completed FSc, BSc with the super combinations of chemistry, physics, mathematics, English, and I have completed MA English and Urdu. So, dear friends, I have completed 1 year learning course of economics privately, and this is my first video which is based on the statistical subject of economics, which is called statistics. In this video we will discuss about the more important terminologies which is used in statistics and the most important MCQs which are very important in the paper point of view of PBS preparation. Those candidates which are preparing the UTS PBS test preparation, these MCQs are very important which are related to these terminologies. First of all, we will discuss one by one these terminologies, and at the next time we will discuss these most important MCQs which are related to these terminologies. And I will provide you a lot of concept and information and completely guidance about the every terminology of the statistics. This is the first video which are related to most important basic terminologies of the economics. If you see my other 4 videos of the statistics, then I want to give you guarantee if your test contain 20 marks, then your 19 marks are very concerned. So now, without any time dilations, we are going to starting the statistics subject. First of all, we will define the statistics. What do you mean by statistics? Statistics is derived from the Latin word status, which may be defined as under. Statistics is defined as the science of collection, presentation, analysis, and interpretation of the numerical data. What is data? कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं से भी मिलती है या किसी भी शक्ल में मिलती है उसे हम डेटा कहते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आप कहीं से भी कलेक्ट करते हो, चाहे वो हरूफ की शक्ल में हो, चाहे वो नंबर्स की शक्ल में हो, चाहे वो सेंटेंसेस की शक्ल में हो, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि वो जो इंफॉर्मेशन या वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, तो इकोनॉमिक्स में ये टर्म जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसे स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें बताती है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने डेटा को कलेक्ट करना है, उसकी स्टडी के बारे में हमें बताती है कि डेटा की कलेक्शन आपने किस तरह करनी है। उसके बाद फिर जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है।
यानी कि दूसरों के साथ उसको शेयर कैसे करना है, दूसरों को उस डेटा के बारे में बताना कैसे है। फिर ये आपने उस डेटा का एनालिसिस करना है, जिस तरह का भी एनालिसिस आप करना चाहो वो आपने करना है। उसके बाद आपने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स इज मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। The second terminology is that what are the meaning of the word statistics in plural sense? In plural sense, the word statistics refers to the aggregates of numerical facts collected for some purpose in any field of study. For instance, statistics of the births and deaths, statistics of the agriculture prices are the statistics. प्लूरल सेंस में अगर आप स्टेटिस्टिक्स के वर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी ख़ास मकसद के लिए जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, वो मकसद कोई भी हो सकता है, वो चीज़ों की कीमतों के बारे में भी हो सकता है, वो आपकी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उनकी जितनी भी इनकम हुई है, या उनकी जितनी भी प्राइसेस हैं, या उनकी क्वालिटी क्या है, या उनकी क्वांटिटी क्या है, उसके बारे में भी हो सकता है। आपके कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में भी हो सकता है। आपके कंट्री में पर ईयर जितनी डेथ हो रही हैं उनके बारे में भी हो सकता है। आपके कंट्री में पर ईयर जितनी बर्थ हो रही हैं उनके बारे में भी हो सकता है। तो ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है अगर हम इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं। The third is that give the meaning of the word statistics in a singular sense. In a singular sense, the word statistics refers to the science used in the collection, presentation, analysis, interpretation of the numerical data. कि अगर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर उसको प्रेजेंट करते हो, फिर उसका एनालिसिस करते हो, फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस करते हो, तो वो सारी क्या होंगी, वो सिंगुलर यूज़ में आएंगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स एज प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक। द वर्ड स्टेटिस्टिक्स इज यूज्ड एज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक। बाय स्टेटिस्टिक वी मीन अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल वैल्यूज़। कि कोई भी पॉपुलेशन जो आपके पास है, आप क्या करते हो, उस पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हो। असल में सैंपल ये होता है कि वो उस पॉपुलेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करता है। सैंपल क्या होता है कि जो पॉपुलेशन आपके माइंड में है उस पॉपुलेशन का एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है, एक बहुत ही छोटा पोर्शन होता है कि जो उस ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में आपको कंप्लीटली गाइड कर देता है। तो असल में हम क्या करते हैं, स्टेटिस्टिक्स में एक टर्मिनोलॉजी है पॉपुलेशन, जिसे हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, कोई भी सैंपल लेते हैं, वो सैंपल हमें उस ओवरऑल पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ के बारे में बता देता है, तो इसे हम कहते हैं स्टेटिस्टिक। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पॉपुलेशन। You should remember always one thing is that population is also called a parameter. The other name of the population is a parameter. Population is defined as the totality of the observations with which we are concerned. कि वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हम किसी ख़ास मकसद के तहत करते हैं वो सारे पॉपुलेशन में आते हैं, वो सारे पैरामीटर्स में आते हैं। पॉपुलेशन एक आपके पास ओवरऑल क्वांटिटी होती है
कि जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताती है, वो चीज़ जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं और उनमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का जो वेट है, एवरेज वेट जो है, ख्वाह वो मैट्रिक के स्टूडेंट हो, ख्वाह वो 8 क्लास के स्टूडेंट हो, ख्वाह वो 7 क्लास के स्टूडेंट हो, तो 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज वेट आ रहा है वो कितना आता है। तो अब आप पूरे पाकिस्तान के स्कूलों में नहीं जा सकते और उन स्कूलों में इन क्लासेस में नहीं जा सकते और इन क्लासेस में इतने सारे बच्चों का वेट आप मालूम नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप इसको ग्रुप वाइज आप इसको इस्तेमाल करोगे, आप इसको ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट कर दोगे। आप डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ग्रुप बना लो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप सिटी बेस्ड ग्रुप बना लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उनका एक स्मॉल सा सैंपल बना लोगे कि जो आपको पूरे स्कूल में मौजूद जो मकसद है आपका है कि आप उनका वेट जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, या उनका जो भी एवरेज वेट आता है कि हाँ भाई पाकिस्तान के इतने गवर्नमेंट के स्कूल्स में क्लास 7, 8, 9 और 10 के इतने बच्चों का जो एवरेज वेट है वो ये बनता है। तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कि व्हाट इज़ सैंपल। सैंपल क्या होता है कि ये आपकी पॉपुलेशन का एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है, एक बहुत ही छोटा पोर्शन होता है कि जिसको आप टेस्ट करने के लिए लेते हो। और सैंपल जो है वो आपको पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता है। सैंपल जो है वो आपको पूरी पॉपुलेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में आपको कम्प्लीटली गाइड कर देता है। आपको ओवरऑल पॉपुलेशन को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये अपनी आसानी के लिए किसी भी पॉपुलेशन से कोई भी सैंपल लेते हो और फिर उसको स्टडी करते हो, उसको टेस्ट करते हो। तो क्या होता है कि वो जो सैंपल आप लेते हो वो जिस पॉपुलेशन से आपने लिया है वो उसी पॉपुलेशन की आपको ओवरऑल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या क्वांटिटीज़ हैं वो सारी आपको उसके बारे में बता देता है। A sample is the representative part of the population। कि सैंपल क्या होता है कि ये किसी भी पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है कि जो उसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ पैरामीटर। द सेकंड नेम ऑफ द पैरामीटर इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन। A numerical quantity calculated from the population is called a parameter। कि वो न्यूमेरिकल मकदार, वो नंबरी मकदार कि जो आप किसी भी पॉपुलेशन से हासिल करते हो उसे हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर को पॉपुलेशन भी कहते हैं, जिस तरह सैंपल को स्टेटिस्टिक भी कहते हैं उसी तरह पॉपुलेशन को पैरामीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स। अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल। कि वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर, और वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हम किसी भी सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं स्टेटिस्टिक। नेम द टू ब्रांचेस ऑफ द स्टेटिस्टिक। द टू ब्रांचेस ऑफ द स्टेटिस्टिक्स आर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स and the inferential statistics, and the third one is the attributive statistics। Define the descriptive statistics। The branch of the statistics that deals with the collection, presentation and analysis of the data is called the descriptive statistics।
कि स्टेटिस्टिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, वो सारी किस में आती हैं? वो सारी आती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में। नेक्स्ट है डिफाइन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ द स्टेटिस्टिक्स दैट डील्स विद द मेथड्स दैट यूज सैम्पल रिजल्ट्स टू हेल्प मेक डिसीजंस अबाउट अ पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास एक पॉपुलेशन होती है, आप उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हो, आप उस सैंपल को स्टडी करते हो, उस सैंपल को टेस्ट करते हो, तो जो प्रॉपर्टीज़ आप उस सैंपल से लेते हो आप जनरलाइज कर सकते हो कि ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ जो इस पॉपुलेशन की हैं वो भी यही हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ आपको उस सैंपल से मिली हैं या जो ऑब्जर्वेशंस उसको आपको उस सैंपल से मिली हैं, आप उनको जनरलाइज कर सकते हो कि हाँ भी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल में 97 या 98% पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो जनरलाइजेशंस हैं ओवरऑल पॉपुलेशन पे वो ठीक हो सकती हैं। नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिस्टिकल मेथड। स्टेटिस्टिकल मेथड मीन्स द फॉलोइंग स्टेप्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, कि किसी भी डेटा को कलेक्ट करना चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, ये इसमें पहला स्टेप है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, फिर आपने उस डेटा को अरेंज करना, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो या डिसेंडिंग में अरेंज कर रहे हो या ग्रुप की शक्ल में अरेंज कर रहे हो या अन ग्रुप की शक्ल में अरेंज कर रहे हो, तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन में आता है। एनालिसिस ऑफ डेटा, आपने उस डेटा का एनालिसिस करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, आपने उस डेटा की इंटरप्रिटेशन करनी है। प्रिपरेशंस ऑफ द रिपोर्ट, और जब आप पहले 4 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएं तो 5th में आपने एक रिपोर्ट बनानी है कि जो जो रिसर्च आपने की है या जो जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिली हैं उसकी एक आपने रिपोर्ट बनानी है और फिर उसी रिपोर्ट को ओवरऑल पॉपुलेशन पे आपने जनरलाइज कर देना है। नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज़ द मैनर और स्टाइल इन विच समथिंग इज़ एक्सप्रेस, कि आप दूसरों को किसी भी चीज़ के बारे में बताना चाहते हो तो जिस स्टाइल में या जिस अंदाज में वो चीज़ आप बता रहे हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेटिस्टिक्स। नंबर 1 इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, collected in a systematic manner for a predetermined purpose. Describe 2 limitations of the statistics. This is very important. Statistics deals with the aggregate of facts. Just only we will study the aggregate of facts in a statistics. Statistical laws are true on the average. Describe the 3 important uses of the statistics in various fields. Statistics are an aid to supervision. Planning without statistics cannot be imagined. Statistics are the eyes of the administration. Define the 3 functions of the statistics. Presentation of the facts in a definite form. Statistics facilities comparison. Statistics tests the law of the other sciences. What is constant? कांस्टेंट एक ऐसी मिकदार को कहते हैं कि जिसकी वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होती। कांस्टेंट एक ऐसी मिकदार को कहते हैं कि जिसकी वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होती। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू तब्दील होती हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। A quantity that does not change is called a constant. For example, the number of the days in a week. कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होती हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा।
or you can say that the value of the pi which is equal to 3.1517. Define a variable. Those quantities which are changed. A variable is a symbol such as a x, y, z. आप वेरिएबल को एक्स वाई जी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो विच कैन एज्यूम एनी ऑफ अ प्रीस्क्राइब्ड सेट ऑफ द वैल्यूज. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द वेरिएबल्स. द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वीकली वेजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेरिएबल. कि जो इंडिविजुअल वेट्स होता है वो भी चेंज हो सकता है, जो किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, जो आपके लोगों की पर वीकली जो तनख्वाहें आ रही हैं वो भी चेंज हो सकती हैं. तो ये सारे वेरिएबल में आते हैं. डिफाइन द क्वांटिटेटिव वेरिएबल. ऐसा वेरिएबल कि जो हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल. और ऐसा वेरिएबल कि जो हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल. एग्जांपल्स आप दे सकते हो. हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन पर हाउस, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल. For example, religion, beauty, eye color, educational level, sex, etc. are the examples of the qualitative variable. क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स वो होती हैं कि आप क्या कर सकते हो, उसकी मदद से आप क्वांटिटी को बता सकते हो कि वो चीज़ उसकी क्वांटिटी है कितनी, नंबर्स में वो आप उसको गिन सकते हो, बता सकते हो कि वो चीज़ नंबर में कितनी है. नंबर में भी हो सकती है, किलोग्राम्स में भी हो सकती है, एजिस में भी हो सकती है, ईयर में भी हो सकती है, मंथ में भी हो सकती है. आप उसके बारे में बता सकते हो. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनको इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बता सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप कहना चाहते हो कि हाँ भी ये बंदा कितना खूबसूरत है, तो जो इसमें ब्यूटी है वो आपका क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है. इस तरह आप आई कलर के बारे में बता सकते हो, आप उसके मज़हब के बारे में बता सकते हो, आप उसकी कास्टी के बारे में बता सकते हो, आप उसके ख़ानदान के बारे में बता सकते हो, आप उसकी एजुकेशन के बारे में बता सकते हो. डिफाइन द डिस्क्रीट वेरिएबल गिविंग एग्जांपल्स. A discrete variable is a variable which cannot theoretically assume. डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जिसको हम थ्योरेटिकली अज्यूम नहीं कर सकते. और कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जिसको हम थ्योरेटिकली अज्यूम कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स इन अ मंथ, कि एक महीने में जितने एक्सीडेंट हुए हैं आप इनको थ्योरेटिकली अज्यूम नहीं कर सकते. नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन अ फैमिली, कि एक ख़ानदान में कितने बच्चे हैं, इनको भी आप नहीं कर सकते. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कि एक क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, इनको आप थ्योरेटिकली अज्यूम नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं. अगर क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो वो 25 ही हैं. अब ये नहीं कह सकते कि हाँ भी हो सकता है कि वो 26 हों. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिफाइन द कंटिन्यूस वेरिएबल गिविंग एग्जांपल्स. कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जिनको हम थ्योरेटिकली अज्यूम कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर वेट ऑफ द बॉय, कि जो चेंज होते रहते हैं. अब देखें ना, एक आदमी है उसका वज़न जो है वो इस हफ्ते अगर 54 किलोग्राम है तो हो सकता है कि अगले हफ्ते वो 60 किलोग्राम हो जाए. द मंथली इनकम, हो सकता है कि एक आदमी की जो इस महीने की जो तनख्वाह है वो 25,000 है तो हो सकता है कि अगले महीने में वो 30,000 हो जाए. टेम्परेचर हो गया, हो सकता है कि आज टेम्परेचर जो है वो आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो हो सकता है कल वो 35 या 40 पे चला जाए. ब्लड प्रेशर, हो सकता है कि अभी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल आता है, कल वो तब्दील भी हो सकता है.
द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट इज डेटा. डेटा क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट the information which you get from the anything, this is called the data, which may be in the form of numbers, figures, sentences, statements, etc. कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी भी चीज़ से मिलती है या किसी भी चीज़ से जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं. वो नंबर की शक्ल में भी हो सकता है, वो फिगर की शक्ल में भी हो सकता है, वो सेंटेंसेस की शक्ल में भी हो सकता है, वो बयानात की शक्ल में भी हो सकता है. जिस शक्ल में भी हो वो डेटा होता है. The number recorded as a result of counting or measuring are called data. The next is what is ungrouped data. There are two terminologies. First is called the group data and the second is the ungrouped data. वो डेटा जो आप किसी भी चीज़ से हासिल करते हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, जो कि अनग्रुप्ड होता है. वो डेटा जो आप किसी भी चीज़ से हासिल करते हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, जो कि अनग्रुप्ड होता है. और वो डेटा जो आप हासिल करके फिर उसको अरेंज कर देते हो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा और ग्रुप डेटा. Name the methods used for collection of data. The data collected may be primary and secondary. Methods for collection of the primary data: observations, telephonic interviews, personal interviews, mailed questionnaires. Method for collection of the secondary data: official sources, semi-official sources, private sources, technical, trade journals, publications of research organization. What is questionnaire? Questionnaire is a method in which the required information is obtained by sending questionnaires to the selected individuals by the mail who fill the questionnaire and return it to the investigators. कि क्या है, आपको किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको किसी भी डेटा की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो एक दूसरा बंदा है कि उसने इन्वेस्टिगेशन की हुई है, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को ले लेते हो, तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चनियर. प्राइमरी डेटा कि वो डेटा जो आप सबसे पहले लेते हो, जो अनग्रुप्ड होता है, जो ऑर्डर्ड नहीं होता, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. और वो डेटा जो आप लेते हो जो ग्रुप की शक्ल में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा. Describe the methods used for a collection of primary data. Direct personal observation, indirect oral investigation, investigation through the questionnaire, investigation through the enumerators, estimates through the local correspondence registration. Describe the method collection for the secondary data: official sources, semi-official sources, private sources, technical and the trade journals, publications of the research organization. ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आप secondary data ले सकते हो. What are the different methods of presentation? Classification means कि आपने क्या करना है कि जो डेटा आपने स्टडी किया है उसको आपने क्लासीफाई करना है. टेबुलेशन आपने क्या करना है कि उसको ग्रुप की शक्ल में, लाइनों की शक्ल में ज़ाहिर करना है, टेबुलेशन कहलाएगा. डायग्राम्स, उस डेटा के रिलेटेड जो है वो आप डायग्राम्स बना सकते हो, और उस डेटा के रिलेटेड आप ग्राफ्स बना सकते हो. डिफाइन द टर्म क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच थिंग्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स. जो चीज़ें आपको मिली हैं आपने ग्रुप्स में अरेंज करनी है. क्लासेस क्लासेस की शक्ल में भी कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सम रिजेंबलनेस इन द यूनिट्स ऑफ ईच ग्रुप, की शर्त यह है कि जो ग्रुप में जो चीज़ें आप अरेंज कर रहे हो वो उसकी लिहाज से मिलती हो. राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्लासिफिकेशन. इट शुड बी unambiguous, it should be flexible.
What are the main basis of the classifications? Classification of the data depends upon the following factors: spatial, temporal, qualitative and quantitative. Define one-way classification. वो क्लासिफिकेशन जो आप किसी भी एक वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए करते हैं उसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन जिसको आप दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए करते हैं उसको हम कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन जिसको आप तीन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए करते हैं उसको हम कहते हैं थ्री वे। व्हाट इज मीन बाय द टेबुलेशन? जो डेटा आपके पास है आपने क्या करना है, सिस्टमेटिकली उसको कॉलम्स में रोज में अरेंज करना है, तो वो क्या होगा, टेबुलेशन होगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेबुलेशन? जनरल पर्पस टेबल एंड द स्पेसिफाइड पर्पस टेबल। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? कि जो डेटा आपके पास है अगर आप उसको उसकी मैग्नीट्यूड की बिना पर अरेंज करते हो असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में या ग्रुप्स की शक्ल में या पीरियड्स की शक्ल में, तो वो आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, कि किसी भी क्लास की वो फ्रीक्वेंसी जिसको आप टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। व्हाट आर क्लास लिमिट्स? The class limits are defined as the values of the variables which explain the classes. मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक क्लास है 25 to 26, तो जो 25 है वो इसकी लोअर लिमिट है और जो 26 है वो इसकी क्या है, अपर लिमिट है। व्हाट आर द क्लास बाउंड्रीज? आपको चीज़ दी गई है, आपको दिया गया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 40 से 50 के दरमियान मार्क्स लिए हैं, तो जो लोअर बाउंड्री वो आपके पास क्या होगी, 40 होगी, और जो अपर बाउंड्री वो आपके पास 50 होगी। डिफाइन द टाइम क्लास एंड द क्लास फ्रीक्वेंसी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड these terms. What do you mean by the class mark or midpoint? The average value of the lower and the upper class limits or class boundaries is called a class mark and midpoint. आपने क्या करना है कि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को ऐड करना है और दो पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। व्हाट इज क्लास इंटरवल और क्लास विथ? द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड अ इंटरवल। Now we are going to discussing more important MCQs which are related to these terminologies. The science of the statistics can be divided in branches, 3 branches: descriptive branches, inferential branches, attributive branches. The lifetime of the TV cable is a continuous data. एक बार ख़राब हो सकती है, आप दूसरी ले आओगे, 2 बार ख़राब हो सकती है, आप तीसरी ले आओगे, 3 बार ख़राब हो सकती है, आप चौथी ले आओगे। The group data is a secondary data. The group data is a secondary data and the ungrouped data is called a primary data. Classification has important basis too. Frequency is denoted by F. Nowadays, the word statistics can be expressed in how many ways? 3 ways.
The data obtained from the college record, this is called secondary data. A measure computed from sample data is called statistics. कि वो क्वांटिटी जो हम सैंपल से मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक कहते हैं, और वो क्वांटिटी जो हम किसी भी पॉपुलेशन से मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर. Statistics are always aggregate of the facts and figures. The group data is always called secondary data, and the ungrouped data is always called primary data. Population census is conducted through the complete enumerations. The word statistics is believed to have been derived from the Latin word status. One-way classification is dependent upon the one variable. Two-way classification is dependent upon the two variable. Three-way classification is dependent upon the three variables. Height of the student is an example of continuous variable. Questionnaires method is used in collection of primary data. Statistics must be comparable. Any data in your book for you is a secondary data. The number of the weeks in a month. एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? This is a discrete variable. This is a fixed variable. The number of the weeks in a month is an example of the discrete variables. Collection of the data from house to house is by both mailed questionnaire and through the enumerators. Non-measurable quantities are attributes. दोस्तों एट्रीब्यूट जो हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर खूबसूरती हो गई, वॉइसनेस हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको आप मेजर नहीं कर सकते. ब्यूटी हो गई. Census reports published are secondary data. A characteristic that changes from one individual to another is called a variable. कि वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है वो तब्दील होती रहती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल. जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती उसे हम कहते हैं कांस्टेंट. रॉ मटेरियल्स कलेक्टेड बाय फर्स्ट हैंड, दिस इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा. कि वो डाटा जो आपको पहली मरतबा मिलता है अगर वो ग्रुप की शक्ल में नहीं है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा जो अनग्रुप होता है. लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द 25 to 35 विल बी. अब देखें इसमें लोअर क्लास बाउंड्री जो है 25 और जो अपर क्लास बाउंड्री वो है 35. आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते नंबर की शक्ल में. लाइक आई कलर हो गया, ब्यूटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, वॉइसनेस हो गई, ब्रेवरी हो गई. द ग्रुप डेटा इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. द अनग्रुप डेटा इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी डेटा. स्टेटिस्टिकल लॉज आर वैलिड इन अ लॉन्ग रन. Statistical laws are valid in a long run. Parameters are related to population and static are related to sample. There is no difference between the secondary data and the group data. The second name of the group data is also called the secondary data and the second name of the primary data is also called the ungrouped data. In plural sense, statistics means numerical data. You will study the numerical data in the plural sense. The number of the accidents on the road is the discrete variables. The data collected from the first time is also called the primary data. The word statistics is derived from the Latin words. The word statistics is believed to have been derived from the Latin word status. Statistics is a word Latin. Statistics means aggregates of facts. Statistical laws are true on the average and long run. Statistics is defined as the numerical data in a plural sense. Statistics plays an important role in research. The word statistics is nowadays used in three ways. Statistics does study quantitative facts. We always study the quantitative facts in statistics. Statistical laws are true for long term. Science of the systematic collections, presentation, analysis, and interpretation of the numerical data is called statistics.
A variable quantity which vary from one value to another, this is called a variable. A variable which can assume any value between the two given values, this is called a continuous variable. Data classified by the attribute is called a qualitative. क्वालिटेटिव डेटा आपके पास कौन सा होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्यूटी हो गई, वाइसनेस होगी, इंटेलिजेंस होगी, ब्रेवरी होगी, ये सारी आपकी किस में आती हैं, क्वालिटेटिव डेटा, और ये किस में होती हैं, एट्रीब्यूट में होती है. A variable which cannot assume any value between the two given values, this is called a discrete variables. Non-variable quantities are the attributes, कि वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लाइक ब्यूटी हो गई, वाइसनेस हो गई, इंटेलिजेंस हो गई. नंबर ऑफ द वीक्स इन अ मंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ discrete variables. You can say this is a constant, and a discrete variable and constant are the right answer. A characteristic that does not change is called a constant. Which of the following is an example of a discrete variable? Number of the children in a house. Which of the following variable is an example of the continuous variable? Height of the students in a class. The height of the students is an example of continuous data. The number of the road accidents on the Lahore Faisalabad road is example of discrete variable. Which one is the continuous variable? Rainfall on different days in a Multan. Identify the attributes, the eye color of the students. Which of the following is an example of the discrete variable? The number of the flowers on a tree. Number of the days in a week is an example of constant. Collection of the data by Patwari is the primary data. Collection of the data from house to house is called a both mailed questionnaire through the innovations. Publications of the Central Statistical Office, Ministries of the Agriculture, Finance, Communications and Railways, etc. are the examples of scanned data. The data which is not ranged is called the raw data. Questionnaire method is used in the collection of primary data. A numerical quantity calculated from the sample is called a statistic. You should always think this is that a numerical quantity calculated from the sample is called a statistic. A numerical quantity which is calculated from the population is called a parameter. The process by which things are arranged in a group, this is called a classification. One-way classification is done considering one variable. Two ways depending upon two variables. Three ways considering three variables. Data grouped according to the magnitude is called a frequency distribution. वो डेटा जिसको हम मैग्नीट्यूड की बिना पर अरेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. अरेंजमेंट ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन. किसी भी खसूसियात की बिना पर अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन. द क्लास मार्क इज डिफाइंड एज मिड पॉइंट. मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास मार्क. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको किसी तरह से भी लगता है कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, या इस वीडियो की वजह से आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है जो कि जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दिया है. अगर आप मेरी आने वाली और 4 वीडियोज़ जो हैं, ये टोटल स्टेटिस्टिक्स पर सिर्फ 5 वीडियोज़ बनी हैं जिनमें मैंने पूरी स्टेटिस्टिक्स को कवर किया है. उनके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे उनको मैंने कवर करवाया है. उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको वो बताए हैं. जो बंदा भी इस एक वीडियो को और इसके बाद आने वाली 4 वीडियोज़ को कम्प्लीटली देख लेता है, समझ लेता है, उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कर लेता है, जो इम्पोर्टेंट MCQs जो मैंने आपको करवाए हैं वो कर लेता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो पेपर होता है, अगर उसमें 30 MCQs हैं तो उसके 29 पक्के हैं. उम्मीद करता हूँ कि उसके 29 जो MCQs हैं वो ठीक होंगे. तो प्लीज़ कोशिश करें कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो इंशाल्लाह ये मेरी पहली वीडियो है और मैं जो अगली 4 वीडियो जो हैं बहुत ही जल्द वो अपलोड कर दूँगा.